Good evening everyone. In D and F block elements, today we are going to discuss the trend in another physical property, that is standard electrode potential. You are aware of standard electrode potential, आपके लिए ये नया नहीं है. Standard electrode potential का मीनिंग आप अच्छे से समझते हो. Electrode potentials are measure of the value of total enthalpy change, and this electrode potential depends on enthalpy of atomization and hydration enthalpy. किन दो factors पे dependent है ये? This is dependent on enthalpy of atomization and hydration enthalpy. याद रखिएगा, lower the standard electrode potential, the more stable is the oxidation state of metal in aqueous state. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितनी लो होगी उतना ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल होगा, राइट. लोअर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन. ये जस्ट एक टेबल दिया हुआ है, इसको बीच बीच में हम रेफरेंस में यूज करेंगे. अभी आप यहां आ जाइए. For the first row transition metals, the E naught values are given. ये first row transition metals के E naught values दिए हुए हैं. आपको इन irregularity को, actually ये क्वेश्चन है, this is actually a question. ये क्वेश्चन आज सुबह मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे, अगर याद हो तो how this irregularity can be explained, that we will see. आप देख रहे हो यहाँ पे पहले ये हाईएस्ट नेगेटिव है यहाँ पे, उसके बाद ये डिक्रीज होता जा रहा है, फिर यहाँ मतलब मोर नेगेटिव हो गया, फिर लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, एंड हियर इट इज पॉजिटिव. मैंगनीज का आप देखो हाईएस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू है, और ऐसा क्यों है वो हम देखते हैं. सो द ई नॉट वैल्यूज आर नॉट रेगुलर, एंड दिस इरेगुलरिटी इन द वेरिएशन of E naught value can be explained on the basis of irregularity in the sum of first two ionization enthalpies, because the sum of first two ionization enthalpy for the first transition series is not regular. ये भी irregularly vary करता है. That is why here we have the E naught value trend also irregular. And sublimation enthalpy which are relatively much less for manganese and vanadium. मैंगनीज और वेनेडियम के केस में सब्लिमेशन एंथैल्पी जो है वो काफी नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी ज्यादा लेस नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज है. इन केस ऑफ मैंगनीज एंड वेनेडियम द ई नॉट इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड. इनकी ई नॉट जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी हाईली नेगेटिव है. ऐसा क्यों? बिकॉज देयर सब्लिमेशन एंथैल्पी इज लेस. एंथैल्पी चेंज व्हेन सब्लिमेशन अकर्स, 1 mole of substance converts from solid to gaseous state. चलिए अब ये डेटा आप देखिए ध्यान से. इसमें आप देख रहे हो ये वही है ई नॉट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ई नॉट वैल्यू का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ग्राफ है या चार्ट है. इसमें आप देखो आपको दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे, रेड और ग्रीन कलर यहाँ पे. तो जो रेड वैल्यू है, रेड वन है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ग्रीन वाला जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज है. इसमें आपको ये देखना है कि फॉर मैंगनीज, निकल एंड जिंक, पहले हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे. What we can see here that for manganese, nickel and zinc, the E naught value is more negative than their expected value. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंगनीज, निकल और जिंक के लिए E naught value is much negative than their expected value. ऐसा क्यों इनका E naught value more negative है? उसका रीजन ये है कि Mn2 प्लस में
Mn2+ में we have half filled d orbital. Because of extra stability of d orbital here, क्या होगा? The sum of first and second ionization enthalpy in this case is low, है ना? इनका sum of first और second ionization enthalpy low होगा because it is attaining 3d5 configuration, right? इसीलिए इस केस में the E0 value is more negative. जिंक में भी यही रीजन है, जिंक की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है 3d10. So here we have completely filled d orbital, because of which the sum of first two ionization enthalpy of zinc is also sum of first and second ionization enthalpy for zinc is also less as compared to the other transition metals. ठीक है? और निकल का दूसरा रीजन है, निकल का रीजन है हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली आस्क्ड इन बोर्ड that why the E0 value of manganese, zinc and nickel are less or more negative than their expected values. तो उसका रीजन ये है मैंगनीज के लिए, because in Mn2+ it attains 3d5 configuration, so sum of first two ionization enthalpy is low. Same in case of zinc, it attains 3d10 stable electron configuration, so sum of first two ionization enthalpy is low. And in case of nickel, it is because of the highest negative hydration enthalpy. ठीक है? वो आप देखो ग्राफ में जो है ना 19-20 है, उसको छाने दो. मैं जो थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए. मैंगनीज, निकल और जिंक, ये तीन एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में याद रखना है, जिनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for reduction of Mn2+ to Mn, or for reduction of Zn2+ to Zn, and for the reduction of Ni2+ to Ni is more negative than the general expected trend. 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी. वही वो भी स्टेबल. अगर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है. आयनाइजेशन एनर्जी फिर फर्दर Zn2+ से आगे Zn3+ जाना हो तब न ज्यादा होगा. जिंक से Zn2+ फॉर्मेशन में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि उसको Zn2+ में स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है. Zn+ से Zn2+ में वो कम Zn से Zn2+ कन्वर्ट होने के लिए फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम कम होगा एज कंपेयर टू कन्वर्जन ऑफ Zn2+ टू Zn3+, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. 3d10 में से आप एनर्जी कितना भी प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट. हाँ, बहुत हाईएस्ट एक्सट्रीम केसेस में वो जैसे कि टाइटेनियम या वेनेडियम का वो सब कम दिखाएगा, मतलब ज्यादा दिखाएगा. देखिए वो जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ का पूरा जो ये स्केलिंग है वो एकदम सही नहीं है. एनसीईआरटी में भी आपका वैसा ही दिया हुआ है, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट. आपका जो एनसीईआरटी का जो बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ग्राफ सही दिया हुआ है, वो ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा. हाँ, 3d5 के मतलब Mn2+ के बाद एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, उसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा. तो वो ग्राफ है जो थर्ड है नहीं, वो था E0 वैल्यू फॉर द रिडक्शन ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसा लिखा हुआ था ना, देखो ये दिया हुआ है M2 to M +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तो बात ही नहीं की जा रही है.
आ रहा है, पता पता चल रहा है। लेकिन इस चीज में आप लोगों को जो फोकस करना चाहिए वो तो आपने फोकस किया ही नहीं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने से या हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होने से क्या मतलब है, हाउ द E naught will be affected by ionization enthalpy और द हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। जैसे इस स्लाइड में हमने ये देखा that electrode potential value depends on this two, enthalpy of atomization, जो आगे जाके आप पढ़ोगे कि it is sum of further sublimation enthalpy, ionization enthalpy and all, और दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट पूछना चाहिए था मुझे कि सर कैसे डिपेंड करता है, हाउ डज इट डिपेंड्स ऑन दिस टू वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे कैसे समझते हैं कैसे डिपेंड करता है। जैसे आप मैंगनीज का केस देखिए, मैंगनीज के केस में दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड ये हुआ इसका E naught वैल्यू, है ना। दिस इज द E naught वैल्यू। अब इस पर्टिकुलर केस में आप जब फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम करोगे, टेल मी व्हाट वैल्यू यू विल बी गेटिंग। 716 प्लस 1510 क्या हो रहा है, हाँ 22 26। तो 22 26 you are getting as the sum of first and second ionization enthalpy। और आप उसके बाद के एलिमेंट्स में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम देखो, आप देखोगे उससे कहीं ज्यादा है ना। चलिए अब आप यहां आ जाइए, हाँ वो इसीलिए क्योंकि मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3d5, सॉरी इट इज 3d5 4s2। Mn प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 और Mn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5। तो यहां से यहां और फिर यहां आने में आप देखिए इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेबल हाफ फिल d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल मिलने वाला है, इसीलिए लेसर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। ओके, दैट इज व्हाई द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस, इस केस में भी और इस केस में भी, है ना। आप देखें ना यहाँ 1590 आ रहा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ पे 1960 है, यहाँ कम हो गया, राइट। जबकि आप निकल का केस देखिए, निकल के केस में द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव, निकल के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव। So that is why nickel also has more negative E naught value than the expected trend। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको एनसीईआरटी में भी ये अंडरलाइन करवा दूंगा, वेयर इज इट, वेयर दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज देयर, और इसको स्पेसिफिक याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, व्हाट इज द रीजन फॉर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मैंगनीज के लिए क्या रीजन है, because in Mn2 plus it attains 3d5 configuration and for this reason sum of first and second ionization enthalpy is low। In case of zinc it attains Zn2 plus attains 3d10 configuration, again sum of first and second ionization enthalpy is low, whereas in case of nickel it has highest negative hydration enthalpy। यही वजह है कि इन तीनों एलिमेंट्स की E naught value is more negative than the general expected trend। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि the energy which is released when 1 mole of the substance
1 मोल ऑफ द आयन इज हाइड्रेटेड। 1 मोल आयन का जब हाइड्रेशन हो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। हाँ, निकल का साइज स्मॉल है इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। हाँ, स्मॉलर इज द साइज, हायर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। यस, नहीं यहाँ ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, दूसरा आपने एक चीज ये नोटिस किया होगा यहाँ पे, सॉरी, दूसरा आपने यहाँ पे ये नोटिस किया होगा इस वाले ग्राफ में कि out of all the elements of first transition series or 3D series, only the copper is the element which has positive E naught। सिर्फ कॉपर का ही E naught पॉजिटिव है ना। कॉपर का E naught पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ that copper has higher electrode potential as compared to hydrogen electrode, standard hydrogen electrode। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन से ज्यादा है, that is why copper will never be capable of reducing hydrogen ion, and that is why copper never evolves hydrogen gas on reaction with dilute acids। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कॉपर मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं देता। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन क्यों नहीं देता? क्योंकि कॉपर की ई नॉट वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के ई नॉट वैल्यू से ज्यादा है। नहीं, इसका रीजन है, मैं बताऊंगा, कल भी मेंशन किया था, आज फिर से बताऊंगा। तो ई नॉट वैल्यू इज हाई, और क्योंकि ई नॉट वैल्यू इसकी हाई है, इट विल नॉट बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग H प्लस आयन टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ड्यू टू पॉजिटिव ई नॉट, कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है that why copper fails to liberate hydrogen gas with acid। The answer is because of positive E naught value। The general trend towards less negative E naught values across the series is related to general increase in the sum of first and second ionization enthalpy। पूरे सीरीज में आप देखोगे कि E naught वैल्यू जो है इन जनरल लेस नेगेटिव होते जा रही है, नहीं, E naught वैल्यू थ्रू आउट लेस नेगेटिव होता जा रहा है इन जनरल। तो व्हाई द ई नॉट वैल्यू इज गेटिंग लेस नेगेटिव? उसका रीजन है बिकॉज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज। It is interesting to note that the value of E naught for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the trend। मैंगनीज, निकल और जिंक की ई नॉट वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड ट्रेंड के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव है। अभी इसका ही रीजन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था। उसका रीजन क्या है, देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबशेल इन Mn2+ and the completely filled D10 configuration in Zn2+ are related to their E naught values, whereas E naught for nickel is related to the highest negative hydration enthalpy। This is very important। Okay, clear है ये point? The low value for scandium reflects the stability of Sc3+, which has a noble gas configuration, and the highest value of zinc is due to the removal of an electron from stable D10 configuration of Zn2+. The comparatively high value for manganese shows that Mn2+ is particularly stable, whereas comparatively low value for Fe shows extra stability of Fe3+। ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन है फर्दर कि स्कैंडियम के केस में द ई नॉट हैज लो वैल्यू, लेस वैल्यू। इससे क्या पता चलता है, ये इसीलिए है क्योंकि Sc3+ जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। और क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। ई नॉट डिपेंड करता है
enthalpy of atomization, ionization enthalpy, sublimation enthalpy and hydration enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो ई नॉट लेस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा. The highest value for zinc is because of removal of electron from stable D10 configuration, and high value for manganese shows Mn2 plus that is D5 configuration जो है वो ज्यादा स्टेबल है, that is why. और comparative low value for Fe shows extra stability of Fe3 plus. Fe3 plus में D5 configuration होता है. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी पे. Transition metals vary widely in their chemical reactivity. Many of them are sufficient electropositive to dissolve mineral acids, although a few are noble, that is they are unaffected by simple acids. पता है आपको ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं जो एक सिंगल एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, जो एक सिंगल एसिड में डिसॉल्व नहीं होता. जैसे गोल्ड, गोल्ड इज नॉट सॉल्युबल इन सिंगल एसिड. गोल्ड इज सॉल्युबल, प्लैटिनम इज सॉल्युबल ओनली इन मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो 1:3 which is called, क्या बोलते हैं, concentrated HNO3 and concentrated HCl in ratio 1:3. क्या कहा जाता है इसको, एक्वा रीजिया. आपको तो पता होना चाहिए प्रथम. हाँ, पता होना चाहिए. पूरा दुकान नाम पे करवा लूंगा, सोच लो. The metals of first series with the exception of copper are relatively more reactive and are oxidized by 1 molar acid. फिर से वही पॉइंट आया that first transition series में कॉपर को छोड़ के बाकी सभी ट्रांजिशन मेटल 1 मोलर HCl से या 1 मोलर एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब वो H प्लस आयन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर पाते हैं, एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर के अलावा. Though the actual rate at which these metals react with oxidizing agents like hydrogen is sometimes slow. Rate of reaction slow हो सकता है. कॉपर सर एक स्लाइड है, कॉपर नॉन रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है. अच्छा, कॉपर को छोड़ के सब मोर रिएक्टिव होता है. हाँ, 1 मोलर इस प्लस से ऑक्सीडाइज होता है. और ऑक्सीडाइज होता है इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 मोलर एसिड को रिड्यूस कर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर पाता है, राइट. कॉपर नहीं कर पाता. The E0 values for M2 plus to M indicate a decreasing tendency to form divalent cations across the series. आपने देखा कि E0 वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज शोइंग अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग डाइवेलेंट आयन. डाइवेलेंट आयन फॉर्मेशन का डिक्रीजिंग टेंडेंसी इज शोन as the E0 value is getting less negative. This general trend towards less negative E0 value is related to increasing the sum of first and second ionization enthalpy. ये पहले ही बता चुका हूँ. ये भी बता चुका हूँ the E0 value for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend. Repeated है, बता चुका हूँ. अब ये देखिए देखो M2 प्लस स्लैश M, इसका मतलब होता है द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन फ्रॉम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेटालिक फॉर्म, है ना. और इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को हम E0 M2 प्लस 2M ऐसा लिखते हैं. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया हुआ हूं मैं. क्या हाँ, यहाँ E0 वैल्यू जो है M2 प्लस 2M इसकी कम होते जा रही है, लेस नेगेटिव होते जा रही है.
लेस नेगेटिव होते जा रही है, इसका मतलब ये हुआ दिस शोज डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग डाइवैलेंट कैटायंस, मतलब M2 प्लस आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी सीरीज में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते जा रही है। ये देखिए इनॉट वैल्यूज फॉर द रेडॉक्स कपल M3 plus to M2 plus shows that Mn3 plus and CO3 plus ion are the strongest oxidizing agent. Mn3 plus and cobalt 3 plus are strongest oxidizing agents. क्यों strongest oxidizing agent है? क्योंकि Mn3 plus में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुका है, आई मीन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है 3d4 है ना, और 3d4 से ज्यादा स्टेबल क्या है 3d5 राइट। तो 3d4 से 3d5 आने में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब खुद का रिडक्शन किया, तो क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। Mn3 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट आई मीन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d4, Mn2 प्लस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d5, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल 3d5, तो ये यहां से यहां आने की कोशिश करेगा, 3d4 से 3d5 में कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब यहां से यहां आने में इसने अपना खुद का रिडक्शन किया, अपने आपका रिडक्शन किया तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो हुआ ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वे यू कैन सी फॉर कोबाल्ट आल्सो। KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें दूसरा रीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, बताता हूं। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई। कोबाल्ट का देखिए, कोबाल्ट +3, तो आप बताओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताओ 27, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7 राइट, और कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d6, तो CO3 प्लस आयन 2 4s से जाएगा, एक 3d6 होगा, so this also acts as strong oxidizing agent. Now you think why, क्यों बोलो, reducing नहीं, oxidizing agent, both are strongest oxidizing agents in aqueous solution. Why? बोलिए, क्या हूं +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए क्या करना होगा इसको, गेन करना होगा ना, रिलीज कर देगा तो उसके पास D5 हो जाएगा, तो आ जाएगा। सोचिए, इसमें दिमाग लगाइए, तब तक मैं आगे का नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। द आयंस Ti2 plus, V2 plus and Cr2 plus are strong reducing agent and will liberate hydrogen from dilute acid. Titanium in +2 oxidation state, vanadium in +2 oxidation state and chromium in +2 oxidation state acts as a strong reducing agent. सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो जाएगा। चलिए, और हाइड्रेशन एंथैल्पी
हाईली नेगेटिव हो जाएगी। सही पकड़े हो। नहीं हुआ? टाइटेनियम, वेनेडियम and chromium. Tell me their electron configuration. This is 3d2. This is 3d3 and this is 3d4. है ना? And they all act as reducing agent. They all act as reducing agent. Why? इसमें देखो, इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत सिंपल है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि दिस on converting into Cr3 plus gives 3d3 electron configuration which in the aqueous solution is there in T2g orbital and T2g orbital is half filled. अब ये T2g आपको ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पता चलेगा कि क्या है। d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है T2g और Eg में, तो ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पता चल जाएगा। और T2g में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस स्टेट में ये हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड स्टेट मिलता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वैनेडियम और टाइटेनियम, इन दोनों में व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वैनेडियम के केस में क्रोमियम दिया ही नहीं है इसमें, यस एक मिनट। वैनेडियम के केस में दिस, सॉरी टाइटेनियम के केस में ये, वैनेडियम के केस में ये और क्रोमियम के केस में ये। Their high negative E0 value. Their high negative E0 value is the reason behind them acting as strong reducing agents. ठीक? हाँ। दोनों फैक्टर देखना है शौर्य, दोनों फैक्टर देखना है। और इसमें जो है ना वो टेबल एक मिनट नहीं दिया हुआ है, M3 प्लस टू M2 प्लस वाला, M3 प्लस टू M2 प्लस वाला टेबल नहीं दिया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है ना एक चार्ट दिया हुआ था, पूरा टेबल जिसमें E0 वैल्यूज दी हुई थी, उसके नीचे का कुछ स्टेटमेंट था। तो स्टेटमेंट मैंने बोला था कि ये वैल्यू याद रखो या ना रखो, ये स्टेटमेंट जरूर याद रहना चाहिए। अभी आज कंप्लीट करके बताओगे मुझे। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Substances which contain species, atoms, ions, molecules with unpaired electrons in their orbital, they are paramagnetic. Paramagnetism का मतलब हुआ that these substances, when placed in any external magnetic field or near external magnetic field, they are attracted toward it. किसी मैग्नेटिक फील्ड से क्लोज रखने पे ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और ये पैरामैग्नेटिज्म देखने को क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है।
11th स्टैंडर्ड में भी आपने ये पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। सर जो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक मैग्नेटॉन। यस, paramagnetic substances are weakly attracted by magnetic field, strongly attracted called ferromagnetic, उसका काम नहीं है, इसको जाने दीजिए, फिजिक्स में पढ़ा होगा। Substances which do not contain any unpaired electrons and are repelled by magnetic field, they are called diamagnetic। जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। यस, transition metals usually contains unpaired electron, so that is why they are paramagnetic। क्वेश्चन याद आ रहा है सनी? सुबह एक क्वेश्चन ये था, transition metals are generally paramagnetic, the reason is because they contain unpaired electron। paramagnetic behavior increases with increase in unpaired electron, जितना ज्यादा unpaired electron होगा उतनी ज्यादा paramagnetism होगी। उसमें एक ये भी क्वेश्चन था that manganese और आयरन, आउट ऑफ मैंगनीज एंड आयरन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आउट ऑफ Mn2 प्लस एंड Fe2 प्लस विच इज मोर पैरामैग्नेटिक। तो इसमें ना 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि Fe2 प्लस में देयर इज ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट अब ये दो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोलो किसका ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा आएगा, रूट 35 बोर मैग्नेटॉन, और इसका कितना होगा? रूट 24, रूट 24, रूट 35 इज ग्रेटर, बोर मैग्नेटॉन यूनिट है। Paramagnetism expressed in terms of magnetic moment and it is related to the number of unpaired electron. The magnetic moments calculated from spin only formula, and this is the spin only formula. Spin only formula बोलते हैं इसको, this is spin only formula। spin only अलग नहीं है, spin only formula नाम दिया गया है फॉर्मूला को, and this is derived experimentally। इसका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। ये याद रखिएगा, 1 बोर मैग्नेटॉन इज 9.27 into 10 to the power minus 21 अर्ग पर गॉस, सीजीएस यूनिट में है। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोगे तो रूट 3 आएगा, रूट 3 इज 1.73, है ना? जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, आपको बोर मैग्नेटॉन यूनिट में ही फाइंड करना है। यस, गॉस भी सीजीएस यूनिट में है, और गॉस जो है वो आपका उसका यूनिट है। फिजिक्स में नहीं पढ़ा है आप लोगों ने गॉस? किस पार्ट में पढ़े हो गॉस? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ना, उसी का यूनिट है। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बता दिया। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिकॉज ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा ये मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से होती है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ये चीज आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में, कि एवरी इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट, है ना? तो उसका जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसकी वजह से होता है? उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से।
orbital angular momentum is अच्छा एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम समझते हो? ऑर्बिटल का शेप पता है? तो ऑर्बिटल के शेप पे जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट उसमें जब हो रही हो तो कांट यू अंडरस्टैंड कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम भी प्रोड्यूस होगा? एंगुलर मोमेंटम इज द एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर रोटेशनल मोशन, है ना? ओमेगा इज इक्वल टू आर इनटू पी, है ना? आर क्रॉस पी करते हो ना, ठीक है? आया समझ में? इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना कि दे आर स्पिनिंग एज वेल एज दे आर रिवॉल्विंग, है ना? रोटेशन भी हो रहा है, तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम तो एसोसिएटेड होगा ही। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, उसके एवरीथिंग को हम ऑर्बिटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हुआ। चलिए, ये बोर मैग्नेट्रॉन्स का वैल्यू दिया हुआ है कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दीज आर ऑल कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। आप देख रहे हो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मैग्नेटिक मोमेंट आर अप्रोक्सीमेटली सेम एज दिस, ठीक है? चलिए, नाउ लेट्स टेक 5 मिनट पॉज एंड देन वी विल कंटिन्यू। 5 मिनट के बाद। Okay, now let's see formation of colored ions. Sunny, formation of colored ions. Colored ions के लिए देखो 11th स्टैंडर्ड में भी, या आप लोगों को इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब मैंने फ्लेम टेस्ट करवाया था उस वक्त भी बताया था व्हाट इज द रीजन फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द फ्लेम। याद आ रहा है? जैसे स्ट्रॉन्शियम गिव्स क्रिम्सन रेड कलर फ्लेम, जैसे बेरियम गिव्स एप्पल ग्रीन फ्लेम, है ना? डार्जलिंग ब्राइट और व्हाइट फ्लेम। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही रीजन यहां पे भी है। When electron from a lower energy d orbital is excited to higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to frequency of light absorbed, and this frequency generally lies in the visible region. The color observed corresponds to complementary color of the light absorbed. क्या होगा? सपोज डी ऑर्बिटल के किसी भी ट्रांजिशन, आई मीन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही कंसिडर कर लीजिए और उसमें किसी भी मेटल आयन के सॉल्यूशन को कंसिडर कीजिए। So when the white light passes through that solution, their electron gets excited to higher energy d orbital. अब आप सोच रहे होंगे कि ये हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल क्या है, तो आप समझ लीजिए कि डी ऑर्बिटल और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 5 डी ऑर्बिटल्स फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। The 5 d orbitals, first their energy rises and then they split into these two set T2g and Eg. तो ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल हो गया, ये हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल हो गया। अब यहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, इसको जब एनर्जी मिलेगी लाइट की एच न्यू, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? Eg। अच्छा, यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू सम फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी विच इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इज करस्पॉन्डिंग टू सम फ्रीक्वेंसी और सम वेवलेंथ, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ दैट वेवलेंथ विल बी रिफ्लेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आ रहा है समझ में? When electron from lower energy d orbital excited to higher energy d orbital, energy of excitation corresponds to some frequency of light absorbed, and this frequency lies in visible region. The color absorbed corresponds to complementary color
of the light absorbed. Fine. Frequency of light absorbed is determined by the nature of ligand. अब ligand क्या है? Ligand are the donor atoms, donor molecules which form complex with the metal atom or ion. ज्यादा अभी इस पे स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ने वाले हो. You are going to discuss this entire part, ligand and how the complex formation takes place in coordination compounds. The next chapter is entirely dedicated to that only. और वहां पे भी वो कलर फॉर्मेशन का फिर से डिस्कशन आएगा. लेकिन अभी हमें कलर फॉर्मेशन और कलर इम्पार्ट से क्या समझना है, यही चीज आपको मैं बता रहा था कि d orbital splits into this two set T2g and Eg. Then electron when jumps from T2g to Eg, इलेक्ट्रॉन जब T2g से Eg में जंप होगा तो सम wavelength of the light is getting absorbed and its complementary color is reflected. ठीक है, विजिबल रेंज में फॉल करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है. अब ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है या एक्साइट हो रहा है, वो एक लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में जा रहा है. इसीलिए इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट डू वी कॉल इट? डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए that why the transition element form colored ions, why the transition metal forms colored ion, or why the transition metal compounds are colored in their aqueous solution, उसका आंसर क्या होगा? Because of डी ट्रांजिशन ऑफ एक लोअर डी ऑर्बिटल से वो हायर डी ऑर्बिटल में जा रहा है. तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो एक डी से दूसरे डी में हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एक चीज और याद रखिएगा कि द डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैपन ओनली व्हेन द डी ऑर्बिटल्स आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट. जब डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो डी ट्रांजिशन होगा. हाँ, नहीं, पहले मैं जो समझा रहा हूं वो समझ लो, इधर उधर से चीजें अभी डायरेक्ट नोट मत करो, पहले समझ लीजिए. डी ट्रांजिशन क्या इन दो केस में होगा? D0 D10 नहीं होगा ना. वही चीज बताया यहां पे. Ti4+ में सारे के सारे डी ऑर्बिटल वेकेंट है, खाली है, एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. इलेक्ट्रॉन होगा तब ना उसका एक्साइटेशन होगा. इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एक्साइटेशन कहां का? इसीलिए Ti4+ कैसा होगा? कलरलेस. Ti4+ कैसा होगा? कलरलेस. और आप Zn2+ और Cd2+ में देख लो, इसमें 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसमें 4d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है. डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, जगह भी तो होनी चाहिए ना. जब पूरा ही लोअर डी ऑर्बिटल और हायर डी ऑर्बिटल दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? नहीं मूव कर पाएगा ना. तो इन दो स्टेट में D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन में नो कलर्ड आयंस विल बी फॉर्म, कलर्ड इम्पार्ट नहीं करेगा. बाकी सारे केसेस में जहां इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल होंगे, देयर इट विल बी फॉर्मिंग कलर कंपाउंड्स और कलर्ड आयंस. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास जंप करने के लिए वो नहीं है. 0 हुआ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और 10 हुआ तो जंप करने के लिए जगह ही नहीं है. चलिए, समझ रहे हो आप लोग? वेरी गुड. चलो ये देख लो चार्ट. Sc3+ D0 कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस. Ti4+ D0 कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस. Ti3+ एक डी इलेक्ट्रॉन है, इट शोज कलर. कलर याद करने की जरूरत नहीं है. V4+ एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज कलर्ड. ऐसे ही देखिए यहां तक सारे कलर्ड होंगे, लेकिन लास्ट वन देखिए जिंक Zn2+,
कलरलेस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, चलिए अभी इस पे ध्यान दीजिए। मेटल आयन बाइंड अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स गिविंग कॉम्प्लेक्स। Transition metal have an ability to form complexes with the anions or neutral molecules getting bonded to it. These anions or neutral molecules which are binding with central atom by donating its electron are called ligands. क्या बोलते हैं इनको? ligand. ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सभी कॉम्प्लेक्सेस हैं। एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम मतलब ट्रांजिशन मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर उससे बॉन्डेड हो जाते हैं और इस तरह से वो फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस। उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। अब ये कॉम्प्लेक्सेस और ज्यादा डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ने को आए। एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which have ability to give its electron to transition metal atom और ion, उनको कहते हैं ligands। जैसे आपने ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है ना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? which has ability to give electron pair, right? same way ये inorganic chemistry में वैसा ही है, it also give its electron pair। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ligand। अच्छा, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? देखिए सुबह ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। आपने पढ़ा है ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है। देयर हाई आयोनिक चार्जेस, आयोनिक चार्ज इनकी हाई होती है और चार्ज टू रेडियस रेशियो हाई होता है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, रीजन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ये हम डिस्कस भी किए हैं आज। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का क्या मतलब है? ट्रांजिशन मेटल जो है, ट्रांजिशन मेटल्स का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन होता है। दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स दे फॉर्म क्रिस्टल लैटिसेस। क्रिस्टल लैटिसेस का मतलब हुआ कि एटम्स इन द transition metals are arranged in a regular ordered arrangement। इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? रेगुलर एंड ऑर्डर्ड। अब इनके एटम्स के बीच जहां छोटे छोटे स्पेसेस बचते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, उनको कहा जाता है वॉइड्स। और इस वॉइड में ये स्मॉल एटम्स हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये इजीली ट्रैप हो सकते हैं। So when a small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped in crystal lattices of metals, they form interstitial compounds। छोटे छोटे एटम्स हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जब ट्रांजिशन मेटल के इंटरस्टिशियल साइट का मतलब हुआ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस। जैसे मान लीजिए कि ऐसे क्रिस्टल लैटिसेस में एटम्स अरेंज्ड हैं एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, तो ये जो खाली एम्प्टी स्पेसेस मिल रहे हैं इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। और इस इंटरस्टिशियल वॉइड्स में ये छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो सकते हैं। तो जब ये ट्रैप होंगे क्या फॉर्म करेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है उसका एग्जांपल ये देखिए, दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में नहीं है, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, फ्रैक्शंस डेसिमल्स में आ रहा है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल एटम अवेलेबल होते हैं। मेटल एटम्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक ही कंपाउंड में अलग अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो कुछ बहुत सारे आइटम के साथ बॉन्ड। हाँ, तो इसी वजह से दे हैव नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन। देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी दी है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट,
हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। दे आर वेरी हार्ड। सम बोराइड्स अप्रोच हार्डनेस ऑफ डायमंड। बोराइड्स का मतलब हुआ व्हेन द बोरोन इज ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइड। बोरोन का भी साइज छोटा होता है, तो जब बोरोन ट्रैप हो तो वो बोराइड्स फॉर्म करेगा, और बोराइड कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हार्डनेस डायमंड से कंपेरेबल है। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। दे आर केमिकली इनर्ट। कैसे होते हैं ये? केमिकली इनर्ट। सर सोडियम फ्लोरोबोरेट ये डायमंड से उसका हार्डनेस कंपेरेबल है? सोडियम फ्लोरोबोरेट नहीं, सोडियम फ्लोरोबोरेट इज नॉट कंपेरेबल विद डायमंड। सर गिव सम एग्जांपल। ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, सोडियम ट्रांजिशन मेटल थोड़ी है। और बोरेट नहीं, बोराइड्स। बोराइड्स का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ बोरोन एटम हो। बोरेट्स का मतलब हुआ BO3 माइनस। अच्छा आप कल तो बताया। हाँ, कल कब बताया था? दो स्लाइड। अच्छा वो, हाँ सही बोल रहा है, वो बोराइड नहीं था, वो फेरेट था। उसमें मैंने बताया था कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक होती है, बट कुछ फेरेट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 ऑल्सो। बोरेट नहीं था, वो फेरेट था। चलिए, बिकॉज ऑफ सिमिलर एलॉय फॉर्मेशन देखिए। एलॉय तो जानते हो ना क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल। So because of similar radii, other characteristics of transition metals are alloy are formed. देखिए, alloy formation कब होता है? जब जिन metals को आप mix कर रहे हो उनकी atomic radius एक दूसरे के 15% within होनी चाहिए। The atomic radius of the metals when are within 15% of each other, they form alloy on mixing। ठीक है? और ट्रांजिशन मेटल का आपको पता है कि उनके एटॉमिक साइज का डिफरेंस कम होता है, तो द एटॉमिक साइज इज विद इन 15% ऑफ ईच अदर, दैट इज व्हाई दे फॉर्म एलॉय। एलॉय सो फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें फेरस एलॉय देखिए, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील। प्लीज ये याद रखने वाली चीज है, एग्जाम्पल में पूछा जाता है। Alloys of transition metal with non transition metals, इसका एग्जांपल है कॉपर एंड जिंक से बनता है ब्रास, और कॉपर और टिन से बनता है ब्रॉन्ज, है ना? हाँ, और भी होता है। स्टील में तो बहुत सारा होता है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन भी होता है, नॉन मेटल। कार्बन इज ऑल्सो देयर इन स्टेनलेस स्टील। Catalytic activity. Transition metals are known for their catalytic activity as well. And why do they show catalytic activity? Because of their ability to adapt multiple oxidation state to form complexes. Transition metals जो हैं वो multiple oxidation state में exist हो सकता है। इसी ability की वजह से transition metal खुद या ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। शौर्य आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं? निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, राइट? प्लैटिनम इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ऑसवाल्ड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाबर्स प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। हाँ, कॉपर इज ऑल्सो यूज एज कैटलिस्ट। फाइन, कहां यूज होता है कॉपर कैटलिस्ट? कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू, व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, वो वाला रिएक्शन याद कर रहा है ना? राइट, ठीक है। इसके अलावा और भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं।
ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स भी हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, सनी इस बात को तुरंत समझ सकता है क्योंकि सनी आज बार बार वो क्वेश्चन फेस किया है। व्हाई द ट्रांजिशन मेटल्स आर एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखिए, आयोडाइड आयन ऑन रिएक्शन विथ पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन कन्वर्ट्स टू आयोडीन एंड सल्फेट आयन। यहां पे आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, आयरन कैटलिस्ट इज यूज्ड Fe3+, जिसमें आप देखो पहले स्टेप में Fe3+ ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन टू आयोडीन and itself gets converted to Fe2+, and further Fe2+ reduces this and converts to sulfate ion, itself get oxidized to Fe3+। तो यहां पे आयरन मतलब Fe3+ ने जो भी कैटालिटिक एक्टिविटी शो की, वो क्यों शो की? क्योंकि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। Its ability to adapt multiple oxidation state is the reason behind catalytic activity of ferric ion here। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा ही जाता है, ये तो कॉमन है, ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा से ये आवाज आ रही है कि इससे बेस्ट क्वेश्चन 100% इस बार आपके एग्जामिनेशन में आएगा। वो किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको रिएक्शन स्टेप वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, पूछा जाता है व्हाई द ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, इलस्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आप बताओगे बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसी चीज को आप इस एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। सिंपल। हाँ सनी, किसले? चलिए नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन। When a particular oxidation state becomes less stable relative to other oxidation state, one lower, one higher, it is said to undergo disproportionation। ये मैंने बताया हुआ है आपको disproportionation रिएक्शन क्या होता है, और ये जो disproportionation दिया है ना, ये in between ऐसे ही दिया है, oxides of oxoanion, ये आगे का पार्ट है, ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये हाँ नहीं अलॉय फॉर्मेशन तक ही रखेंगे, ये डिस्प्रपोर्शनेशन ये आगे का है, हम इसको हाँ इसको नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे लेंगे। ठीक है, कंप्लीट the entire concepts by studying NCERT thoroughly। ठीक है, अभी तक हमने जो भी कवर अप किया है, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, दैट एंटायर कंसेप्ट शुड बी थॉरो, यू हैव टू थॉरोली स्टडी इट। रीड नहीं बोल रहा हूं, स्टडी बोल रहा हूं। स्टडी मीन्स यू हैव टू स्टडी एंड प्रिपेयर इट, राइट। रीड करना है, प्रिपेयर करना है, जहां प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस के साथ करना है, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस। एंड आई एम एडिंग क्वेश्चंस एज वेल, क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, दैट यू हैव टू कंप्लीट। Tomorrow we will start with the compounds, oxo compounds of transition metals, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है।